So today we are starting the next topic, which is the important one, and this is the current mechanism or mechanism of current flow in the conductor. Okay, we already discussed that in a conductor there are large number of free electrons as well as the positively charged atoms. Okay, these positively charged atoms are basically the atoms which detach the electron from themselves. Okay, so they becomes positively charged. So due to the thermal energy, due to the temperature, at the room temperature, if we say that they all the electrons have some thermal energy. Okay, and due to this thermal energy they moves randomly within the conductor. They cannot leave the surface or the material of the conductor due to the metallic bond, but they can move within the conductor anywhere, and this type of motion is called the random motion. And as well as this type of motion, there will be the collision of these electrons with the atoms or the walls of the conductor. Okay, so in this situation, whenever the electron will move, it will move like the free particles of the gas. ओके, गैस मॉलिक्यूल्स की तरह ये पार्टिकल्स या इलेक्ट्रॉन्स जो है ये मूव करते हैं, एंड दैट्स व्हाई दे आर आल्सो नेम्ड एज इलेक्ट्रॉन्स गैस. Okay, they are also named electron gas because they move like the molecules of the gas within the conductor. लाइक एक कंटेनर में गैस मॉलिक्यूल मूव करते हैं, वैसे इलेक्ट्रॉन उस कंडक्टर के विद इन मूव करते हैं. कौन से इलेक्ट्रॉन? ओनली द फ्री इलेक्ट्रॉन्स. ओके, सो these are the free electron, but due to their random motion. अब ये जो random motion है किस कारण है? क्योंकि कंडक्टर पे अभी हमने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया है ना. इन अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की अभी हम बात कर रहे हैं, तो इन अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड द मोशन इज कॉल्ड द रैंडम मोशन. ओके, एंड ड्यू टू दिस रैंडम मोशन द एवरेज वेलोसिटी, अब क्या होगा, जैसे इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो इट विल कोलाइड. ड्यूरिंग दिस कोलिजन द वेलोसिटी विल चेंज इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज इन डायरेक्शन. And when this velocity will change due to the collision, then we can take the average velocity of all the electrons, and when we find the average velocity of electron, then it always comes to be zero. जो एवरेज वेलोसिटी है वो हमेशा जीरो आती है, क्योंकि हम वेक्टर फॉर्म में उसको ले रहे हैं. तो सपोज करो कि n इलेक्ट्रॉन they are moving in the left hand side direction, then the same almost same n number of electron will move in the right hand direction with the same velocity. Some n electrons are moving in upward direction, then the same n electron will move in the downward direction. It is according to the statistics, where very large number of electrons are there. Around 10 to the power 28 electrons per meter cube exist within the conductor or metal. Okay, so इसी को मैंने यहाँ पर दो तीन लाइन में बोर्ड पर लिखा है. The first line is, it is the important topic, mechanism of current flow in the conductor. Okay, and a conductor is consist of large number of free electrons. The number density is around 10 to the power 28 per meter cube, and the positively charged atoms. Clear? Then these electrons move randomly. These electrons move randomly within the conductor due to the thermal energy, क्योंकि 0 केल्विन टेम्परेचर नॉन अचीवेबल होता है, और कोई ना हर कंडक्टर किसी न किसी टेम्परेचर पर अगर होगा तो उसके इलेक्ट्रॉन्स के पास में थर्मल एनर्जी होगी. Okay, and due to this thermal energy the motion is which type of motion is there? It is the random motion. जैसे हमने 11th क्लास में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के पोस्टुलेट्स पढ़े थे, वहां भी हमने कहा था कि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं गैस के वो रैंडम मोशन करते हैं. वहां हमने मीन फ्री पाथ को डिराइव किया था. तो सेम टाइप ऑफ मोशन द इलेक्ट्रॉन्स विल हैव इन केस ऑफ द कंडक्टर. Okay, and which type of electrons? Only free electrons. जहां कहीं भी हम इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं, दे आर ओनली द फ्री इलेक्ट्रॉन्स. बाउंड इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं एटम के साथ में, लेकिन उनका इलेक्ट्रिसिटी में कोई रोल नहीं होता. ओके, नाउ conductor due to the thermal energy. In this random motion they collide with atoms and wall of the conductor. वॉल के साथ में और एटम्स के साथ में वो कोलाइड करेंगे, क्योंकि मोशन कर रहे हैं तो ऑब्वियस है कोलिजन होगा. हो सकता है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का भी कोलिजन हो जाए, मे बी,
but electrons they are in moving and the atoms are at fixed at their position. Okay, so we say that the atom and walls of the conductor, the average velocity of these electrons, जो average velocity है in absence of electric field, यानी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अभी अप्लाई नहीं किया है और इसी कारण इसका मोशन कैसा है, रैंडम मोशन है. तो इन absence of electric field the average velocity is 0. एंड इसको अगर हम इनिशियल वेलोसिटी से लिखे देन u एवरेज वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं इसीलिए 0 आ रहा है. तो u1 plus u2 plus u3 and so on un divided by n and this value will be the 0, ऑलमोस्ट 0 रहेगी. इसीलिए ये इसका एक प्रैक्टिकल एविडेंस भी है कि अगर हम एक कंडक्टर के किसी भी दो एंड्स पर सपोज करो अमीटर कनेक्ट करते हैं तो इट शोज 0 करंट, ऑलवेज शोज 0 करंट एंड 0 करंट मींस देयर इज नो मोशन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. चार्ज जो है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव नहीं करता, हर डायरेक्शन में मूव करता है और जब हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो उसकी एवरेज वैल्यू 0 आ जाती है. ओके, सो इसको एक बार नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में लिख लेना. नाउ वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट ड्रिफ्ट मोशन. ओके, ड्रिफ्ट मोशन किसे हम कहेंगे, ड्रिफ्ट मोशन व्हेन वी अप्लाई अ पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज अक्रॉस द conductor, then the type of motion which electron suffers is called the drift motion. ड्रिफ्ट का मतलब होता है किसी फोर्स के इन्फ्लुएंस में वर्क करना. ओके, जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल हम दे सकते हैं कि क्लास है, क्लास में सपोज करो टीचर अवेलेबल नहीं है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जितने भी स्टूडेंट्स होंगे वो सारे स्टूडेंट्स क्या कर रहे होंगे, रैंडम मोशन कर रहे होंगे. कोई किधर जा रहा है, कोई किधर जा रहा है, कुछ भी सिस्टमैटिक नहीं है, डिसिप्लिन इतना नहीं होगा, कैमरा भी नहीं लगा हो तो. दूसरा, अगर मान लो टीचर क्लास में आ जाता है और क्लास में आने के बाद में वो पढ़ाना शुरू कर देता है तो उस समय क्या हो जाता है, सारे के सारे स्टूडेंट्स अपनी सीट पर बैठ जाते हैं और टीचर को सुन रहे होते हैं. तो उस समय उन सारे स्टूडेंट्स में रेगुलरिटी आ गई, यानी वो सब एक ही डायरेक्शन में देख रहे हैं. अगर मैं उनके विजिबल की, अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं, विजन की बात करूं, तो एक तो था कि कोई इधर देख रहा है, कोई उधर देख रहा है, सबका रैंडम विजन था. लेकिन जब टीचर सामने आ गया, वो पढ़ाना शुरू हो गया तो सबका जो विजन है वो एक यूनिक डायरेक्शन में हो गया. सेम इसी तरह की एक प्रोसेस जो है वो कंडक्टर में होती है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है उनके पास थर्मल एनर्जी के कारण रैंडम मोशन होता है, लेकिन जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हैं तो वो अट्रैक्शन के कारण, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव जिधर पोटेंशियल होगा उधर इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे नेगेटिव टू पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ, तो उनका मोशन कैसा हो जाएगा, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो जाएगा और उस एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन होने को ही हम ड्रिफ्ट मोशन कहते हैं. इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड और एक्सटर्नल फोर्स, क्योंकि फोर्स भी लगेगा. अगर ई इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लगाया है तो F इक्वल्स टू क्यू ई से हम इलेक्ट्रिक फोर्स भी लिख सकते हैं. ओके, तो सेकेंड हम बात करते हैं ड्रिफ्ट मोशन की कि व्हेन वी अप्लाई, थोड़ा सा ये थ्योरेटिकल है, इसमें हमें कुछ लैंग्वेज लिखनी पड़ती है इस टॉपिक में, लेकिन डेरिवेशंस भी मिलेंगे अपने को बहुत सारे. When we apply external electric field across the conductor, then electrons, अभी इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट motion in a particular direction. ओके, जैसे सपोज करो कि ये मेरे पास में एक कंडक्टर है एंड वी आर अप्लाइंग द बैटरी of potential difference V here. This is positive, this one is negative. Here the potential will be positive, here will be negative, so there is electric field in this direction. Okay, electric field will be from left to right, and in this situation the electron will move in this direction. ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का जो मोशन होगा वो इस डायरेक्शन में होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है
Okay, electron is a negative charge, and having negative charge you attract it towards the positive terminal or the positive potential. Okay, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं. प्रोटॉन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन अपोजिट करते हैं. हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है. ओके, फर्स्ट चैप्टर में. सो द इलेक्ट्रॉन विल मूव हियर, बट एक्चुअल में क्या होता है, यहाँ पर पॉजिटिव एटम्स भी हैं, तो इन इलेक्ट्रॉन्स का कोलिजन होगा. मैंने रेजिस्टेंस में भी बताया था कि रेजिस्टेंस क्यों आता है कंडक्टर में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ में यहाँ पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम्स भी होते हैं. तो उन एटम्स से ये क्या करता है, कोलाइड करता है. ठीक है, और कोलिजन करते करते, लेकिन इसको जाना इधर है. ओके, जैसे हम भी होते हैं ना, हम जब ट्रैफिक में चल रहे होते हैं तो हमें जाना उस रोड पर स्ट्रेट है, लेकिन हम कभी गाड़ी को इधर बैंड करते हैं, कभी इधर टर्न करते हैं, कभी इधर. जहां हमें गैप मिलता है उस गैप में हम अपने व्हीकल को टर्न करके उस एक स्ट्रेट पाथ में जाने की कोशिश करते हैं. तो सेम थिंग हैपनिंग विद द इलेक्ट्रॉन्स हियर, दैट दे विल कोलाइड विद द पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम्स, but their tendency is to move towards the positive terminal or positive side of this potential. Okay, their tendency is to move this side, but they will collide and change their path. Okay, and that's why we will find the average velocity of the electron. अब इन collision में क्या होगा, जब भी collision होगा तो velocity electron की change होगी magnitude में भी और direction में भी. ओके, तो एक इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करूं तो वो हर बार जब कोलाइड कर रहा है तो अपनी वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज कर रहा है. ओके, तो अगर हम इन सारे कोलिजन्स में जो एवरेज वेलोसिटी गेन है वो कैलकुलेट करें तो इसी एवरेज वेलोसिटी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहा जाता है. Okay, the average velocity gained between two successive collision is called the drift motion during drift velocity during the drift motion. Okay, so this is the situation. इसी कारण रेजिस्टेंस आता है, तो मैं बताया था मैंने पहले भी. तो इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, वो पर्टिकुलर डायरेक्शन कौन सी होगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव या अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड वी कैन से. ठीक है, पर्टिकुलर डायरेक्शन opposite to electric field. Okay, as shown we can say this type of motion is called drift motion, is called drift motion. The velocity will change after each collision in magnitude and direction both. ओके, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में ही वेलोसिटी क्या होती है, चेंज होती है हर कोलिजन के बाद. द एवरेज वेलोसिटी, अब एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आ रही है. ठीक है, ड्रिफ्ट मोशन की तो डेफिनेशन है ही, किसी फोर्स के इन्फ्लुएंस में मूव करना, दैट इज द ड्रिफ्ट मोशन. ओके, और अपनी मर्जी से, अपनी मन मर्जी से मूव करना, दैट इज द रैंडम मोशन. ओके, द एवरेज वेलोसिटी gained by free electrons between two successive collision is called drift velocity. इसका हम एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी डिराइव करेंगे, बट ये डेफिनेशन ध्यान रखना कि एवरेज वेलोसिटी गेन्ड बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी. नाउ ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, अब हम कह सकते हैं कि ये एवरेज वैल्यू ले ली ना हमने, तो जब भी इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो हम कह सकते हैं ऑन द एवरेज वो इस वेलोसिटी से मूव करेगा. इसको vd से डिनोट किया जाता है, डिनोटेड बाय vd. ओके,
वेक्टर फॉर्म में है, वेलोसिटी इसलिए d इज इन सबस्क्रिप्ट, d जो है वो यहां पर सबस्क्रिप्ट में है। क्लियर? तो जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करता है, अब देखो इस एंड से इस एंड पर जब आएगा तो वी कैन से दैट इट इज मूविंग विद द एवरेज वेलोसिटी vd। ओके, अब ये कहा हमने दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में, लेकिन वो वेरिएबल नहीं रही। अब जब हमने एवरेज वैल्यू ले ली ना तो वो एक फिक्स्ड वैल्यू हो गई जो एक एंड से दूसरे एंड ऑफ कंडक्टर पे मूव कर रही है। ओके, जब मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन तब उसके पास में एसोसिएटेड है। इसी के रिगार्डिंग एक और डेफिनेशन आती है एंड दैट इज रिलैक्सेशन टाइम। That is relaxation time. What is the relaxation time? It is the average time taken by electron between two successive collision. ओके, अब यहां जब एवरेज टाइम की बात करते हैं हम, कोलिजन्स के बीच का टाइम है, यानी कि इस टाइम के दौरान वो कोलाइड नहीं कर रहा होगा। देखो एक तो होता है कि कोलिजन में टाइम लगा, फिर उसके बाद वो दूसरे एटम से कोलाइड करने गया, तो कोलिजन वाला टाइम वैसे भी नेग्लिजिबल होता है। एक तो मैं कहूं जैसे सपोज करो इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां से यहां मूव कर रहा है, फिर इस डायरेक्शन में आया, फिर मान लो इस डायरेक्शन में गया, तो इस सिचुएशन में यहाँ टाइम t1 लगा, यहां से यहाँ t2, यहां से यहाँ t3। अब ये जो टाइम है इस यहां से यहां तक ये फर्स्ट कोलिजन हुआ सपोज करो यहाँ, तो इस सिचुएशन में हमने कोलिजन के टाइम को कंसीडर नहीं किया है, वैसे भी वो नेग्लिजिबल होगा। अगर मैं कहूं कि ये मिली सेकेंड में है तो वो माइक्रो सेकेंड में रहेगा या नैनो सेकेंड में होगा। तो वो टाइम जो कोलिजन का टाइम है कि जब इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव एटम से टकरा रहा है, तो वो कोलिजन का टाइम, वो जो पाथ ट्रेवल करता है बिटवीन टू कोलिजन्स, उसके कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होता है। ओके, तो काउंट करोगे भी तो माइक्रो सेकेंड में मिली सेकेंड ऐड करोगे तो फाइनल जो डोमिनेशन होगा वो मिली सेकेंड का ही होगा, तो इतना इसमें इफेक्ट नहीं आएगा। ओके, तो इस समय इन सब t1 t2 t3 t4 जितने भी कोलिजन्स हुए उन सभी टाइम को अगर हम एवरेज ले लें तो वो एवरेज वैल्यू रिलैक्सेशन टाइम बताती है। Okay, this is called the relaxation time, which is the average time taken between two successive collision, and in that time the electron relaxed from the collision. वो उस समय कोलिजन नहीं कर रहा होता। कोलिजन क्या है? एक तरह का एक टक्कर है इलेक्ट्रॉन की एक एटम से, तो उस टक्कर को हम हटा दें, यानी उसका जो टाइम है कोलिजन का उसको हम इग्नोर करके जो फ्री पाथ पे मूव करने के टाइम को ही हम कंसिडर करें तो वो उसका रिलैक्सेशन टाइम। आराम से चल रहा है एक जगह से दूसरी जगह पे तो उसका रिलैक्सेशन टाइम, लेकिन जैसे ही वो एटम के कांटेक्ट में आएगा कोलाइड करेगा तो कोलिजन का टाइम हम इसमें काउंट नहीं करते, इसीलिए हम इसको रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। ओके, तो नेक्स्ट डेफिनेशन लिखो, रिलैक्सेशन टाइम, द एवरेज टाइम, द एवरेज टाइम टेकन बाय, इस डायग्राम की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ऐसा तुमने मीन फ्री पाथ में भी डायग्राम बनाया था, वही कॉन्सेप्ट है, वही चीजें हैं, बस वहां मॉलिक्यूल्स का मोशन हो रहा था और यहाँ इलेक्ट्रॉन्स का मोशन हो रहा है, लेकिन है दोनों टाइप के मोशन एक जैसे ही। ओके, बट वहां वो रैंडम मोशन ही होता था, यहाँ पर ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में भी मोशन बनाया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, so the average time taken by free electron between two successive collisions is called relaxation time, is called relaxation time, and it is denoted by प्लीज मैं पढ़ा रहा हूं अभी नहीं, इट इज डिनोटेड बाय, देखो इसके लिए जो सिंबल यूज आता है दैट इज टॉर्क, जो हम टॉर्क के लिए सिंबल यूज लेते थे। ओके, द सिंबल विच वी यूज्ड फॉर द टॉर्क is same as we are using for the relaxation time। ओके, रिलैक्सेशन टाइम का सिंबल और टॉर्क का सिंबल सेम रहता है।
ओके कई जगह हम टॉर्क को, जैसे हम एक 7 चैप्टर में भी आरसी सर्किट जब करते हैं तो उसमें भी एक टाइम कांस्टेंट आता है, उस टाइम कांस्टेंट को भी हम टॉर्क से ही रिप्रेजेंट करते हैं। ओके तो टॉर्क इज टॉ इज अ ग्रीक लेटर, तो दिस टॉ इज used for the torque as well as for the time। ओके बोथ फिजिकल क्वांटिटी के लिए हम इस सिंबल को कॉमनली यूज्ड लेते हैं। ओके यूज लेते हैं। सो नोट डाउन टिल दिस वन। Now we will derive the expression of this drift velocity, okay, in terms of this relaxation time. Any doubt you can ask? So now next expression of Vd, expression of drift velocity Vd. Okay, now to derive this expression, we consider that the force acting on the free electron when the potential difference V is applied across the conductor is given by, in presence of electric field, in presence of इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं वेक्टर ई से लिख रहा हूं, द फोर्स एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रॉन इज, इलेक्ट्रॉन को मैं e टू द पावर -1 से लिख रहा हूं, ठीक है, शॉर्ट में इसको मैं e टू द पावर -1 से लिख रहा हूं। सो इलेक्ट्रॉन इज F इक्वल्स टू क्या होगा, इट इज Q टाइम्स ऑफ E, and Q is the charge of electron and it will be minus E times of E। ओके ये माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। द फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड आर अपोजिट टू ईच अदर, और होगा भी, जैसे अभी मैंने कंडक्टर की बात की थी, तो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स तो इस डायरेक्शन में लग रहा है, ये यहाँ पर नेगेटिव पोटेंशियल है, यहाँ पॉजिटिव, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन एंड फोर्स एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रॉन इज इन दिस डायरेक्शन। ओके दीज आर द इलेक्ट्रॉन। सो नेगेटिव साइन जो इस इक्वेशन में आ रहा है वो उस चीज को रिप्रेजेंट करता है। नाउ as we know the simple expression or general expression of force is F equals to ma, mass into acceleration, since F is also equals to ma, mass times of acceleration, so therefore equating both the equations, suppose this is equation number 1 and this is equation number 2, so from equation 1 and 2 we can write ma is equals to minus ee, लिख सकते हैं acceleration in terms of the electric field is given by this relation which is ma equals to minus ee। so now here the acceleration can also be written in terms of the velocity, this acceleration is also the average acceleration, this one is the mass of the free electron, वो सेम मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन हम क्या लेते हैं 9.1 10 to the power -31 किलोग्राम। So this is the mass of electron, this is acceleration, charge of electron and electric field. Electric field is external और उसी के कारण उसमें acceleration आया है। Acceleration भी force की direction में होगा, okay? The acceleration will also be in this direction. Velocity जो है वो भी इसी direction में होगी। Vd, F और A ये तीनों एक ही डायरेक्शन में रहते हैं, जबकि करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ये तीनों उस डायरेक्शन में रहेंगे। ओके चलो अब यहाँ पर A की हम बात करें तो A विल बी माइनस ई अपॉन m and this is equation number 3। if tau is the relaxation time,
if torque is relaxation time, then क्या लिख सकते हैं हम, अगर ये रिलैक्सेशन टाइम हो तो एक्सीलरेशन कैन बी रिटन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। बेसिक फॉर्मूला है, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के बीच में वेलोसिटी सारी एवरेज वैल्यू है, ये एक्सीलरेशन एवरेज है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एवरेज है, रिलैक्सेशन टाइम एवरेज है। तो एवरेज वैल्यूज की टर्म में हम एक्सीलरेशन को वेलोसिटी अपॉन टाइम से लिख सकते हैं। ओके, तो यहां से हम ये एक्सीलरेशन की वैल्यू अगर यहां सब्स्टिट्यूट कर दें तो फ्रॉम 3 and 4 we can write Vd upon torque is equals to minus E upon m, or the final expression of Vd is Vd equals to minus E tau upon m, minus E tau upon m. Remember this expression, आपको ये एक्सप्रेशन याद भी रखना है, डेरिवेशन भी ध्यान रखना है। सिंपल सा है, फोर्स को माइनस ई उसी को एम ए के इक्वल करके ए फाइंड कर लो और ए को वीडी अपॉन टॉर्क लिख दो और उससे वीडी आ जाएगा। ओके, तो प्रोसीजर इस तरह से ध्यान रखो और ये फाइनल एक्सप्रेशन इसका याद रखना, ई टॉ अपॉन एम। ओके, सो नोट डाउन टिल दिस वन। Any doubt you can ask here? Now we will derive a relation between current and drift velocity. Okay, now we will derive a relation between the same topic we are continuing, mechanism of current flow. इसमें बहुत सारे सब टॉपिक्स आते हैं, तो उन सब टॉपिक्स को हम वन बाय वन यहाँ पर डील कर रहे हैं। क्लियर? तो एक था यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रिलैक्सेशन टाइम का की डेफिनेशन, एक हमने उससे पहले किया रैंडम मोशन क्या है और ड्रिफ्ट मोशन क्या है, फिर हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन फाइंड किया इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द रिलैक्सेशन टाइम। अब हम करंट का ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ रिलेशन डिराइव कर रहे हैं, एंड दैट रिलेशन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट वन। ओके, सो द नेक्स्ट इज द रिलेशन बिटवीन I and E. We can continue with the same this diagram. कुछ चीजें और ऐड कर देंगे यहाँ पर। पहले अपन नेक्स्ट सब हेडिंग लगा लेते हैं, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट, इट मींस Vd और I में हमें एक रिलेशन यहाँ डिराइव करना है। ओके, सो टू डिराइव दिस रिलेशन अगेन वी आर कंसिडरिंग द करंट flowing in this direction and the current density J is also in this direction. तो देखो इस डायरेक्शन में कौन कौन है, जब हमने V पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ अप्लाई किया है, ओके, and the length of this conductor is taken as L, area of cross section भी हमें यहाँ लेना पड़ेगा and this area of cross section is A, the directions of current, electric field and current density left to right, and the force acting on this electron, velocity, drift velocity of electron and acceleration of electron, all three are from right to left. Okay, so these are the 6 physical quantities जो हम यहाँ ले रहे हैं। लेंथ की डायरेक्शन, लेंथ को हम यहाँ पर केवल इस कंडक्टर की लेंथ कहेंगे और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इस कंडक्टर का जो सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में हमने लिया है, या फिर हम इसको एक वायर कह सकते हैं। वायर जो होते हैं वो मोस्टली सिलेंड्रिकल फॉर्म में होते हैं, दैट्स व्हाई। सो द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज ए। तो इसको हम एक बार इंट्रोड्यूस कर देते हैं डायग्राम को, कंसिडरिंग
a cylindrical conductor, or we can say wire, okay, of length L and cross section length L, क्रॉस सेक्शन कैपिटल ए। देखो क्रॉस सेक्शन का मतलब हमेशा क्रॉस सेक्शनल एरिया से होता है, ठीक है। क्रॉस सेक्शन का मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया से होता है, और वो एरिया ये जैसे ये चौक अगर सिलेंड्रिकल है तो ये सर्कल जो बन रहा है ना, इस सर्कल के एरिया को ही हम यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया या सिंपल क्रॉस सेक्शन कहते हैं, क्लियर, जो सर्कुलर होगा। एक और फिजिकल क्वांटिटी मैं यहाँ पर डिफाइन करूंगा फॉर द कंडक्टर, एंड इट इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट, विच इज द नंबर डेंसिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। Okay, number density of the free electron, that is number of free electrons per unit volume. Okay, so then one more physical quantity which we are taking is small n. number density को हम small n से denote करते हैं। Okay, so this number density is number density of free electron is स्मॉल एन, ठीक है। रेजिस्टिविटी भी ले लो क्योंकि वो भी हमें यूज लेनी पड़ेगी यहाँ पर। रेजिस्टिविटी रो है इसकी, ये सब उस कंडक्टर की प्रॉपर्टीज है। रेजिस्टिविटी रो, इलेक्ट्रॉन का मास हम एम लेते ही हैं, ओके, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एम एन कर दो चलो, ठीक है, एन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एम। So these are the properties of this conductor or the electron which is inside the conductor. Clear? Now, in this situation, first we find, हमें find क्या करना है, देखो current find करनी, और current का basic formula याद रखना। यहाँ इसका प्रोसीजर यही है derivation का कि current का basic formula क्या है, it is the charge per unit time. ओके, इट इज द चार्ज पर यूनिट टाइम। तो जो भी इस टोटल चार्ज इस कंडक्टर के अंदर है उसको हम यहाँ कंसिडर करेंगे, और इलेक्ट्रॉन को इस एंड से इस एंड पर आने में जो टाइम लगेगा उस टाइम को हम फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी हमको यहाँ पर लेनी है इलेक्ट्रॉन की, ओके, और जो यहाँ से यहाँ आने में टाइम लगा उसको भी हम कंसिडर करेंगे, और वो रिलैक्सेशन टाइम के इक्वल ले लेंगे उसको। तो देखो इसको डिराइव करने के लिए सबसे पहला वापस मैं अगर बताऊं तो हमें यहाँ पर टोटल चार्ज और टोटल टाइम टेकन फाइंड करना है, उन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमें करंट मिल जाएगी। अब टोटल चार्ज कैसे फाइंड करोगे, पहले हम टोटल इलेक्ट्रॉन्स फाइंड कर लेते हैं, है ना। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई होता है, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उसको ई से मल्टीप्लाई कर दो तो वो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज आ जाएगा। अब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे फाइंड करें, तो हमें पता है एन क्या है, यहाँ पर नंबर डेंसिटी है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, नंबर डेंसिटी एन है। तो अगर मैं नंबर डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर देता हूं टोटल वॉल्यूम से, तो वो मुझे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करेगा। कैसे, देखो सिंपल सा फॉर्मूला है, एन क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ओके, इलेक्ट्रॉन कौन से, फ्री इलेक्ट्रॉन, ओके। सो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी व्हाट, सो सिंस n की वैल्यू ये है, देयरफॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस कंडक्टर इज n टाइम्स ऑफ वॉल्यूम। अब इसका टोटल वॉल्यूम कितना है, तो वॉल्यूम जब फाइंड करोगे, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और लेंथ का प्रोडक्ट। लेंथ को अपन हाइट भी कह सकते हैं सिलेंडर की, तो जो इसकी हाइट है और जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसको मल्टीप्लाई कर दो। हमें याद क्या होता है फॉर्मूला सिलेंडर के वॉल्यूम का, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है उस सर्कल का, इसीलिए हम इसको a इंटू एल से भी लिख सकते हैं फॉर दिस केस, ओके, इट विल बी a इंटू एल। So the number of electron will be what, NaL, यही होगा। These are the number of electron. Now what will be the total charge inside the conductor? The total charge will be total number of electron multiply the charge of a single electron. तो E से अगर मैं इसी को multiply कर दूं, then we will get the total charge inside this conductor. Okay, so the total charge will be the total charge inside conductor
is Q equals to NaL into E. एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ओके, सो दिस इज द इक्वेशन नंबर 1. नाउ if tau is the relaxation time, vd is the drift velocity, then what will be the time taken by electron from left and right hand to the left hand? It will be velocity upon time. ओके अभी हम यहाँ पर वो कोलिजन वगैरह नहीं ले रहे हैं. हम इस सिचुएशन में यही एज्यूम कर रहे हैं कि वो इलेक्ट्रॉन जो है वो स्ट्रेट पाथ में आ रहा है, क्योंकि हमने एवरेज वैल्यू ले ली. ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एवरेज वैल्यू है, रिलैक्सेशन टाइम एवरेज वैल्यू है. तो जब आपने एवरेज ले लिया ना, तो वो उसी वेलोसिटी से कंटिन्यू चलता रहेगा एक एंड से दूसरे एंड तक. ओके, सो द टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन from right end to left end will be T equals to it will be what? T equals to velocity upon distance upon time. velocity का बेसिक फॉर्मूला क्या है? distance upon time. तो टाइम क्या होगा? distance upon velocity. तो it will be tau upon vd. यही आएगा. इट विल बी tau अपॉन vd. सॉरी, डिस्टेंस कितनी है यहाँ पर? डिस्टेंस l है ना, इट विल बी l अपॉन vd. जो डिस्टेंस ट्रेवल की है, दिस डिस्टेंस इज व्हाट? इट इज l. तो यहां से यहां आने में इलेक्ट्रॉन vd वेलोसिटी से l डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है. तो हम यहाँ टाइम को कैसे लिखेंगे? द टाइम विल बी l अपॉन vd, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी vd से वो ट्रेवल कर रहा है. सो फ्रॉम हियर दिस इज द इक्वेशन नंबर 2. अब बेसिक फॉर्मूला लगाओ करंट का. द करंट इज चार्ज अपॉन टाइम. तो इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो करंट मिल जाएगी. एक बार यहां तक नोट करो. एनी डाउट यू कैन आस्क. I am writing here, since I is equals to Q upon T, and it will be NeAL divided by L upon Vd. So L and L will cancel out. L से cancel होगा and we will get this expression as N. यहाँ पर लिख देता हूं I is equals to NeAVd. D ध्यान रखना, यहाँ पर ये D सबस्क्रिप्ट में है, मल्टीप्लाई में नहीं है. कई बच्चे इस फॉर्मूले को याद तो कर लेते हैं बट वो D से मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर न्यूमेरिकल में उलझ जाते हैं कि D की वैल्यू क्या है. तो आपको ध्यान रखना है D इज फॉर ड्रिफ्ट. ये ड्रिफ्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd एक ही टर्म है, एक ही तरह से सिंबल है जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को बता रहा है. तो I इक्वल्स टू NeAVd आएगा. यहाँ लेंथ से हमें कुछ भी लेना देना नहीं है. करंट जो मिलती है अपने को इन टर्म्स ऑफ Vd, उसका लेंथ से कोई रिलेशन नहीं होता. ओके, सो नोट डाउन टिल दिस वन. यहां हम चाहे तो Vd की वैल्यू रख सकते हैं मैग्नीट्यूड की फॉर्म में. अगर हमें टॉर्क के साथ इसका रिलेशन चाहिए तो Vd क्या होता है? E tau अपॉन m. यही हम लिखते हैं E tau अपॉन m. अभी हमने रिलेशन डिराइव किया था, तो वो रिलेशन भी अगर यहाँ रख दोगे तो इट विल बी व्हाट? NeA इंटू E tau अपॉन m. तो ये देखो, ये रिलेशन क्या मिलेगा अपने को? Ne स्क्वायर A tau इंटू E डिवाइडेड बाय m. ठीक है, ये 5 टर्म्स मिलेगी. Ne स्क्वायर A tau E अपॉन m. बट ये फॉर्मूला हम जनरली याद नहीं रखते. हम Vd का फॉर्मूला याद रखते हैं और एक I का ये रिलेशन याद रखते हैं. ओके, एक और टर्म यहाँ आती है इंपॉर्टेंट, दैट इज द मोबिलिटी. उस मोबिलिटी की टर्म में भी हम इस करंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. उसको भी मैं डिफाइन करता हूं. एक बार यहां तक नोट करो. एनी डाउट यू कैन आस्क. सिंपल सा है, करंट अपॉन टाइम हमें करना था, टाइम को लेंथ अपॉन वेलोसिटी, और चार्ज अपॉन टाइम हमें करना था, और चार्ज इज NeAL और टाइम इज L अपॉन Vd.
सो नाउ द नेक्स्ट मोबिलिटी, एक डेफिनेशन है मोबिलिटी, और इसको म्यू से डिनोट किया जाता है। ओके, म्यू से, म्यू इज द लेटर, जैसे माइक्रो के लिए हम म्यू यूज लेते हैं, वही सिंबल हम ग्रीक लेटर यहाँ मोबिलिटी के लिए यूज लेते हैं। एंड दिस मोबिलिटी सिंपली डिफाइन कि कितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है जब हम उस पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं। ओके, पहले इसका फॉर्मूला समझना। इट इज सिंपली म्यू इक्वल्स टू वीडी अपॉन ई। ओके, म्यू इक्वल्स टू वीडी अपॉन ई। ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड द मोबिलिटी। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। ओके, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी और इसकी यूनिट होती है, वो अभी मैं आगे चल के बता दूंगा। तो Vd अपॉन ई, यानी अगर मैं यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करूं, E को 1 कर दूं, तो जो इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी वो ही उस इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी कहलाएगी। तो सपोज करो आपके पास में दो अलग अलग कंडक्टर है, ठीक है, उन दोनों अलग अलग मेटल से बने हुए, उन दोनों पे आपने सेम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया। ओके, तो ई दोनों के लिए कॉमन हो गया। तो उस सिचुएशन में जिस इलेक्ट्रॉन के पास ज्यादा वेलोसिटी होगी दोनों कंडक्टर्स में से, उसकी मोबिलिटी हाई होगी। ओके, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट देन Vd इज प्रोपोर्शनल टू म्यू। जो ज्यादा तेज भागेगा, ज्यादा स्पीड से चलेगा, उसकी मोबिलिटी ज्यादा। ओके, व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंटली अप्लाइड ऑन बोथ द कंडक्टर। तो उस पर्टिकुलर थिंग को डिफाइन करने के लिए कि सेम यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में वेलोसिटी किस में कम आती है, किस में ज्यादा आती है, हम एक नई फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन करते हैं एंड दैट इज कॉल्ड मोबिलिटी। ओके, सो द मोबिलिटी म्यू इज Vd अपॉन ई। दोनों ही वेक्टर क्वांटिटीज हैं, ठीक है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होती है। एक में अगर आप आई कैप लिखोगे तो एक में माइनस आई कैप लिखोगे। अगर एक्स एक्सिस के अलोंग ले रहे हैं तो वो आई कैप कैंसिल हो जाता है एक्चुअली, इसलिए इसकी कोई यूनिट नहीं रहती। और माइनस साइन हम यहाँ पर लगाते नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हम इसको स्केलर ले रहे हैं। ओके, सो इन दिस सिचुएशन इट इज Vd अपॉन ई। द velocity या drift velocity, we can say the drift velocity gained by free electron per unit electric field। अब देखो ELEC डॉट यहां भी लिख रहा हूं, ELEC डॉट यहां भी लिख रहा हूं, बट वो ध्यान रखना एक इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, फील्ड के पहले आएगा तो इलेक्ट्रिक है वो, और अगर ऐसे ही ELEC डॉट लिखा है तो वो इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, या फिर आप इसको E माइनस लिख सकते हो, कई जगह E-1 से इलेक्ट्रॉन को लिखा जाता है। तो पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड मोबिलिटी। ठीक है, मोबिलिटी डिनोटेड बाय म्यू। सो ये एक फॉर्मूला लिख लो इसका, रिमेंबर दिस एक्सप्रेशन, Vd अपॉन E इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। Vd यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की मीटर पर सेकेंड, और इलेक्ट्रिक फील्ड वोल्ट पर मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट जो बाय डिफॉल्ट हम यूज लेते हैं इट इज वोल्ट पर मीटर। तो ये क्या बनेगा, इट विल बी इक्वल्स टू मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड, है ना। मीटर स्क्वायर, ये मीटर ऊपर चला जाएगा, ये सेकेंड नीचे आएगा, तो मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड। ओके, दैट इज द SI यूनिट फॉर दिस ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड। डायमेंशनल फॉर्मूला तुम डिराइव कर लेना अपने आप, L2 आ जाएगा इसका m स्क्वायर का, S के लिए T1, और वोल्ट का या तो डायरेक्ट याद रखो या फिर वर्क डन अपॉन चार्ज से फाइंड कर लो। ओके, तो चार्ज के लिए ऊपर आ जाएगा तो इसमें A भी आएगा और MLT भी रहेंगे। क्लियर, तो इन चारों की टर्म में इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा। यू ऑल कैन डिराइव द डायमेंशनल फॉर्मूला। क्लियर, बेसिक फॉर्मूला अगर हमें याद है तो हम किसी का भी डायमेंशनल फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। क्लियर, so now from here the Vd can be given as mu times of E।
इलेक्ट्रिक फील्ड और वीडी में ये रिलेशन हम एक और लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ म्यू। तो सिंस आई को हमने लिखा था NeAl सॉरी NeAVD, तो ये VD की वैल्यू अगर मैं यहां रख दूं तो ये क्या हो जाएगा NeA म्यू इंटू E। दिस इज ऑल्सो द रिलेशन बिटवीन द करंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, और करंट इन एंड द मोबिलिटी। तो एक बेसिक डेफिनेशन इसकी ध्यान रखो, इतना सफिशिएंट है। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे रेजिस्टिविटी ऑफ दैट कंडक्टर इन टर्म्स ऑफ द मास एंड रिलैक्सेशन टाइम। ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक विल बी द रेजिस्टिविटी। एनी डाउट यू कैन आस्क, रफ कर रहा हूं मैं इसको। Resistivity rho, we know the relation is I equals to NeAVD। अब इस रेजिस्टिविटी को डिराइव करने के लिए we will use the vector form of Ohm's law। ओके, ओम्स लॉ के वेक्टर फॉर्म को भी हम यहाँ पे यूज लेने वाले हैं। तो I का ये फॉर्मूला है और VD का फॉर्मूला क्या है, इट इज E tau upon m। मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं इसलिए मैंने नेगेटिव साइन नहीं लगाया है, इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ दिस पर्टिकुलर वेलोसिटी। सो सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ Vd हियर, देयर वी कैन राइट I equals to NeA E tau upon m, लिख सकते हैं। क्लियर? फ्रॉम दिस रिलेशन A को मैं इधर ले आता हूं लेफ्ट हैंड साइड में एंड E को स्क्वायर कर देते हैं और ये E साइड में लिख लेते हैं, क्योंकि हम यूज लेंगे J इक्वल्स टू सिग्मा E वाला फॉर्मूला। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट डेंसिटी उसमें होनी चाहिए, और उससे करंट डेंसिटी कैसे आएगी, देखो A को जब हम I से डिवाइड कर दें तो I बाई A विल बी व्हाट J। क्लियर? तो A को मैं इधर ले आता हूं, इसको I बाई A लिख सकते हैं और I बाई A रिमेनिंग टर्म NE स्क्वायर tau अपॉन m मल्टीप्लाई बाय E लिख सकते हैं इसको। ये क्या हो जाएगा J इज इक्वल्स टू NE स्क्वायर tau अपॉन m इंटू E। अब इसको कंपेयर कर लो, कंपेयरिंग विद दिस रिलेशन सिंस J इक्वल्स टू सिग्मा E, कंपेयरिंग विद J इक्वल्स टू सिग्मा E, या उसी की स्केलर फॉर्म ही ले लेते हैं, चलो J इक्वल्स टू सिग्मा E से इट विल बी व्हाट सिग्मा इक्वल्स टू NE स्क्वायर tau अपॉन m। ये तो क्या आ जाएगा, इट विल बी द कंडक्टिविटी ऑफ दिस कंडक्टर, it is the conductivity of the conductor, and the resistivity what, it will be 1 upon sigma, resistivity will be 1 upon sigma, and that's why it will be reciprocal of this one, and it is m upon NE square tau। remember this expression, okay। R का मतलब इसको याद रखना है। कुछ फॉर्मूले होते हैं जो हमें हमेशा याद रखने होते हैं, जैसे ये फॉर्मूला भी आपको रिमेंबर होना चाहिए हमेशा, I इक्वल्स टू NeAVD। बाकी ये इंटरमीडिएट स्टेप्स को अपने को याद रखने की जरूरत नहीं है, लास्ट में जो फॉर्मूला जो बॉक्स में जनरली लिखा जाता है उसको आपको याद रखना होता है। ओके, सो रो इक्वल्स टू m अपॉन NE स्क्वायर tau। तो ये एक रिलेशन है रेजिस्टिविटी, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन चार्ज एंड द रिलैक्सेशन टाइम। तो ये सारे उसके इंटरनल पैरामीटर्स हैं जिस पर ये रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है। ये एक्सटर्नल वोल्टेज और करंट इन सब पे डिपेंड नहीं करती, इवन लेंथ पर, एरिया पर, इस पर भी डिपेंड नहीं करती। ओके, ये डिपेंड करती है मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन पे, चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द रिलैक्सेशन टाइम ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ओके, अब इसी का हम टेम्परेचर के साथ में वेरिएशन की बात करें कि हाउ दिस रेजिस्टिविटी वेरी विद द टेम्परेचर, और ये वेरिएशन कंडक्टर और सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर में अलग अलग होता है।
ओके, सेमीकंडक्टर इंसुलेटर में एक जैसा वेरिएशन है और इसमें कंडक्टर के केस में वेरिएशन डिफरेंट है। तो वो कैसे वेरी करता है उसको हम नेक्स्ट पॉइंट में डिफाइन करेंगे, डिस्कस करेंगे। एक बार यहां तक नोट कर लो। 5 मिनट ऊपर हो सकते हैं, क्लास में कंटिन्यू रहना। किसी को कहीं जाना तो नहीं है? टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑन resistivity. Temperature dependence of resistivity. So the next topic, it means how the resistivity depends on the temperature. Okay, if we increase the temperature, then resistivity will increase or decrease. So for the case of conductors, the resistivity increases with increase in temperature. रेजिस्टिविटी की वैल्यू टेम्परेचर के साथ में इंक्रीज होती है। ओके, तो इन केस ऑफ कंडक्टर, अब ये क्यों होती है इसका रीजन हम उसी एक्सप्रेशन से बता सकते हैं जो अभी हमने डिराइव किया था। ओके, तो सिंस रो इक्वल्स टू, या वी नो रो इक्वल्स टू m अपॉन n ई स्क्वायर टॉप, ये रिलेशन हमने अभी जस्ट डिराइव किया था। इस रिलेशन में देखो, जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल नॉट इंक्रीज। टेम्परेचर के साथ मास नहीं बढ़ता। ओके, हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स में ही है, एक तरह से टेम्परेचर बढ़ता है तो वेलोसिटी बढ़ती है, एनर्जी बढ़ती है ना, रैंडम मोशन की एनर्जी बढ़ेगी ना, और एनर्जी बढ़ेगी तो उसका वेलोसिटी इंक्रीज होगी। तो वेलोसिटी, वैसे तो वेलोसिटी बढ़ने पर मास भी चेंज होता है, वेलोसिटी बढ़ने पर मास बढ़ता है, लेकिन वो रिलेटिविस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़ता है, आइंस्टाइन थ्योरी से या क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग बढ़ता है। हम क्लासिकल मैकेनिक्स की बात कर रहे हैं और यहाँ पर न्यूटोनियन या क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग मास रिमेन्स कांस्टेंट। ओके, तो अभी मैं मास में वेरिएशन की यहाँ बात नहीं करूंगा। n इज ऑल्सो कांस्टेंट, कंडक्टर में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उतने ही रहेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का नंबर तो बढ़ेगा नहीं या कम नहीं होगा, तो n विल आल्सो द कांस्टेंट। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज आल्सो कांस्टेंट, ये तो यूनिवर्सल कांस्टेंट पैरामीटर एक तरह से, या यूनिवर्सल कांस्टेंट है। टॉर्क की वैल्यू ये चेंज होगी। जब टेम्परेचर बढ़ाया तो एनर्जी बढ़ी, इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी चलने लगे, एनर्जी बढ़ी तो टाइम जो था बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन वो कम हो गया ना। ओके, कोई ज्यादा स्पीड से चल रहा है तो एक डिस्टेंस कवर करने में टाइम उसको कम लगेगा, ऑब्वियस है। तो इसीलिए यहाँ पर टॉ क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। तो एज टी इंक्रीजेस, ओके, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये कई बार 1-2 मार्क के क्वेश्चन में पूछा जाता है बोर्ड के अंदर। तो एज टी इंक्रीजेस, torque will decrease, time taken between two successive collision will decrease. ओके, या इसको ऐसे ले सकते हो, टाइम t इंक्रीज होता है तो एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन की, थर्मल एनर्जी वो इंक्रीज होती है। थर्मल एनर्जी इंक्रीज होने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीज होती है, vd विल इंक्रीज, और vd के इंक्रीज होने से टॉ जो है वो डिक्रीज होता है। ठीक है, वेलोसिटी बढ़ेगी तो टाइम टेकन डिक्रीज होगा। तो अगर मैं इन शॉर्ट कहूं, यहां से यहां हम आए तो टेम्परेचर बढ़ने पर रिलैक्सेशन टाइम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ओके, रिमेनिंग पैरामीटर m, n एंड e रिमेन्स कांस्टेंट। ये तीनों यहां पर चेंज नहीं होते, बट सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर में स्मॉल n भी इंक्रीज होता है और बहुत लार्जली इंक्रीज होता है। ओके, बट वो कैसे होता है उसको बैंड थ्योरी से बताया जाता है। कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड की एक थ्योरी है, एक कॉन्सेप्ट है, उसकी हेल्प से हम सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर में नंबर डेंसिटी के इंक्रीमेंट को बताते हैं, और वो हम 14 चैप्टर में स्टडी करेंगे जो सेमीकंडक्टर फिजिक्स है।
Okay, so here for this case these three will remain constant. Okay, so if torque will decrease, अब रो जो है वो टॉर्क के साथ कैसा रिलेशन रख रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। तो टॉर्क अगर डिक्रीज हो रहा है, एज टॉर्क डिक्रीजेस द रो विल इंक्रीज। तो ओवरऑल टेम्परेचर के इंक्रीज होने से, ये टी टेम्परेचर है ध्यान रखना, ओके टाइम नहीं है, तो टेम्परेचर के इंक्रीज होने से रेजिस्टिविटी की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है। ओके, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एज P इंक्रीजेस टॉर्क विल डिक्रीज, और टॉर्क डिक्रीज होने से ये रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी। यानी जितना हाई टेम्परेचर हम करेंगे उसकी रेजिस्टिविटी उतनी ही हाई होती जाएगी। ओके, इसका मीनिंग क्या हुआ कि एट वेरी हाई टेम्परेचर कंडक्टर बिहेव लाइक अ इंसुलेटर। At very high temperature conductor will behave like a insulator। यही हुआ, रेजिस्टिविटी बढ़ रही है यानी करंट कम फ्लो होगी, करंट कम फ्लो हो रही है तो वो किस तरफ जा रहा है, वो इंसुलेटर की तरफ जा रहा है। ओके, तो एट वेरी हाई टेम्परेचर द कंडक्टर behave like an insulator। ओके, अब इसका सिग्निफिकेंस समझना क्यों होता है। एक्चुअल में मैथमेटिकली तो हमको समझ में आ गया कि ये चीजें हो रही है, सिग्निफिकेंस समझना। एक सपोज करो कि एक कोई स्टूडेंट है, ठीक है, क्लास के अंदर है, उसको मैं रिलेट उससे कर रहा हूँ। एक स्टूडेंट है जो क्लास के अंदर है, उसके पास बहुत सारी एनर्जी है ना, वो इतनी एनर्जी है कि वो एक जगह पे बैठ ही नहीं सकता। तो क्लास में टीचर भी आ जाए ना, तो वो उस टीचर के भी कारण भी क्या करेगा, वो रैंडम मोशन ही करता रहेगा। तो अगर सपोज करो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर में है और उनकी एनर्जी जो थर्मल एनर्जी है, टेम्परेचर के कारण एनर्जी वो बहुत ज्यादा है, तो वो रैंडम मोशन करने की प्रॉपर्टी उसकी ज्यादा है। तो जब रैंडम मोशन हाई लेवल का होगा तो आप बैटरी लगा दो उसके, वो कंट्रोल में ही नहीं आता इलेक्ट्रॉन। जो एक ड्रिफ्ट मोशन हम कराना चाहते हैं वो ड्रिफ्ट मोशन वो करता ही नहीं है। ड्रिफ्ट मोशन कब करता है, जब रैंडम मोशन से ज्यादा एनर्जी से उसको खींचा जाता है। लेकिन अगर मान लो रैंडम मोशन की एनर्जी बहुत हाई है तो वो ड्रिफ्ट मोशन के कंट्रोल में ही नहीं आएगा, ये आउट ऑफ कंट्रोल इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं जो थर्मल एनर्जी से इतने एक्साइटेड हो जाते हैं, इतना हाई लेवल का मोशन करने लग जाते हैं कि वो बैटरी से कंट्रोल नहीं होते। ओके, इसीलिए एक कंडक्टर जो है वो हाई टेम्परेचर पे इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन का रैंडम मोशन बहुत हाई लेवल का होता है। ओके, कंपैरेटिव टू द ड्रिफ्ट मोशन। ड्रिफ्ट मोशन जितना ज्यादा होगा करंट उतनी ज्यादा मिलेगी, रैंडम मोशन जितना ज्यादा होगा करंट उतनी ही कम मिलेगी। ठीक है, तो रैंडम मोशन के ऑर्डर के बढ़ने के कारण या रैंडम मोशन की वेलोसिटी बढ़ने के कारण ये कंडक्टिविटी इसकी कम हो जाती है, रेजिस्टिविटी इसकी बढ़ जाती है। ओके, तो ये प्रॉपर्टी ध्यान रखना। एक और रिलेशन है छोटा सा, वो है इस रेजिस्टिविटी का टेम्परेचर के साथ में एक एम्पेरिकल रिलेशन है। ठीक है, उसका कोई डेरिवेशन नहीं है, एम्पेरिकल का मतलब एक्सपेरिमेंटल डेटा से हमने उस रिलेशन को फाइंड आउट किया है या एक तरह से नोट किया है। तो वो रिलेशन क्या है, यहां तक नोट कर लो एक बार। ऐसा रिलेशन हम पहले भी पढ़ चुके हैं थर्मल एक्सपांशन में, जिसमें हमने लीनियर, सुपरफिशियल और क्यूबिकल एक्सपांशन किया था। वैसा ही एक एम्पिरिकल रिलेशन है। इफ T नॉट, इफ रो नॉट एंड रो आर resistivities at temperatures T naught and T, then this rho is given by rho naught 1 plus alpha T minus T naught। ठीक है, 1 plus alpha T minus T naught। This alpha is called here thermal coefficient of resistivity। Okay, it is called thermal coefficient of resistivity। और तुम्हें याद हो मैंने बताया था वायर बाउंड रेजिस्टर में
जो एलॉयज यूज होते हैं, ठीक है, निकल, कॉन्स्टेंटन, यूरेका एक्सेट्रा, उन एलॉयज के लिए इस अल्फा की वैल्यू हाई होती है, ठीक है। और अल्फा हाई होगा तो उसकी रेजिस्टिविटी जो है वो टेम्परेचर के साथ में लार्जली चेंज नहीं होगी। बहुत लार्ज टेम्परेचर चेंज आता है, वेरिएशन, तब कहीं उसके रेजिस्टेंस की वैल्यू अफेक्ट करती है। अदरवाइज आप विंटर और समर में अगर प्रैक्टिकल करोगे तो उससे इतना वेरिएशन उसके रेजिस्टेंस ऑफ द वायर में नहीं आता। इसीलिए लेबोरेटरी में भी हम जो ब्रिज वगैरह होते हैं उनमें वायर्स यूज लेते हैं वो कांस्टेंट टन के लेते हैं, ओके। तो उससे क्या होता है, अल्फा हाई होता है और अल्फा हाई होने से उसमें वेरिएशंस टेम्परेचर के कारण रेजिस्टिविटी में नहीं आते, ओके। प्लस अल्फा यहाँ पर पॉजिटिव होगा कंडक्टर्स के लिए, फॉर कंडक्टर्स अल्फा इज पॉजिटिव, फॉर कंडक्टर्स अल्फा इज पॉजिटिव, एंड फॉर alloys like कॉन्स्टेंटन, कॉन्स्टेंटन एक एलॉय का नाम है, ठीक है। इसमें कुछ अलग अलग मेटल्स का मिक्सचर होता है। वो कौन कौन से होते हैं, किस रेशियो में होता है, वो तो मैं ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगा, बट जरूरत नहीं है उसको याद रखने की, ओके। कॉन्स्टेंटन, सिमिलरली निकल एटसेट्रा हैव हाई वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा की वैल्यू इनके लिए हाई होती है। अल्फा नेगेटिव किसके लिए होगा, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के लिए। तो वो नेगेटिव ये बताएगा कि रो डिक्रीज होगा टेम्परेचर के इंक्रीज होने से, बट यहाँ दोनों एक साथ इंक्रीज होते हैं। रो इंक्रीज होता है टी के इंक्रीज होने पर, ओके। यहाँ से अल्फा भी हम फाइंड कर सकते हैं। देखो इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हो, रो नॉट प्लस रो नॉट अल्फा टी माइनस टी नॉट लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, इस रो नॉट को इधर ले आता हूं तो अल्फा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रो माइनस रो नॉट अपॉन रो नॉट टी माइनस टी नॉट लिख सकते हैं। ये इधर आ गया, रो नॉट डिवाइड में चला गया और ये भी डिवाइड में चला गया। इसको हम लिख सकते हैं अल्फा इक्वल्स टू डेल्टा रो अपॉन रो नॉट डेल्टा टी, ठीक है। और इसकी भी यूनिट क्या हो जाएगी, पर केल्विन और पर डिग्री सेंटीग्रेड, पर डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। क्योंकि रो से रो की यूनिट कट जाएगी, ठीक है, रो से रो की यूनिट कैंसिल आउट हो जाएगी और डेल्टा टी की यूनिट रह जाएगी जो न्यूमरेटर में। सो दैट्स व्हाई इट विल बी पर केल्विन और पर डिग्री सेंटीग्रेड, ओके। तो दिस इज द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द कंडक्टर एंड द थर्मल कोफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टिविटी, क्लियर। सो आई होप यहां तक हम आज कंप्लीट कर लेते हैं। ये बहुत बड़ा टॉपिक था और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, ओके। सो एनी डाउट यू कैन आस्क, अदरवाइज यू कैन लीव द मीटिंग।